Hello, my dear students. Today I am going to explain the long answer type questions of the lesson 3 Journey to the End of the Earth of the book Vistas Supplementary of class 12th. Long answer type questions and answers in not more than 80 words each. Question 1. What was academic Sokolsky? What was its mission and how was it accomplished? Academic सोकोलस्की क्या था, उसका क्या अभियान था और वह कैसे पूरा हुआ था? आंसर. The academic Sokolsky was a Russian research vessel. It had all the facilities its mission was to take all the 52 members to Antarctica safely. Under a program called Students on Ice, it offered the students a life-changing experience at an age when they were ready to absorb, learn, and act accordingly. The program became successful by making the students aware of the dangers of global warming. It provided them with inspiring educational opportunities that would help them develop their understanding and respect for our planet. प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसका हिंदी भी समझाता चलूँगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर का मैं हिंदी भी समझा दूँ। अकादमिक सोकोलस्की एक रूसी शोधपोत था। उसमें सभी सुविधाएं थीं। उसका मिशन स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक कार्यक्रम के तहत सभी 52 सदस्यों को सुरक्षित रूप से अंटार्कटिका ले जाना था। इसने छात्रों को उस उम्र में जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान किया जब वे सीखने, आत्मसात करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में जागरूक करके यह कार्यक्रम सफल हुआ। इसने उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान किए जो उन्हें हमारे ग्रह के प्रति अपनी समझ और सम्मान विकसित करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. What was Gondwana? What had happened for 500 million years? How each
Antarctica helpful to find the history of the earth. गोंडवाना क्या था? 500 मिलियन वर्षों में क्या हो चुका था? पृथ्वी का इतिहास जानने में अंटार्कटिका कैसे उपयोगी है? आंसर 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around present-day Antarctica. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the land mass was forced. So, Antarctica is the place to go to understand the Earth's present, past, and future. Antarctica has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in his respect. 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल संयुक्त दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में था, जो मोटे तौर पर वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा, लेकिन जब डायनासोर का सफाया हो गया और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ तो भूमि को मजबूर होना पड़ा। इसलिए अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने के लिए जाने की जगह है। अंटार्कटिका में कभी भी मानव आबादी नहीं रही है और इसलिए इस संबंध में यह अपेक्षाकृत प्राचीन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका? हाउ इज द ubiquitous silence interrupted there sometimes? अंटार्कटिका में क्या है? वहां पर कभी कभी सर्वव्याप्त शांति कैसे भंग हो जाती है? आंसर, इट वॉज a huge expanse of white devoid of any indications of human habitation, such as trees, billboards, or buildings. Thus, one could lose all earthly sense of perspective and time. The size of things varied from the minute to the colossal. The days seemed to never end because the sun never set in summer, and the omnipresent calm was interrupted only by the infrequent avalanche or
plating ice sheets that sanctified the place. यह सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था जिसमें पेड़, बिलबोर्ड या इमारतों जैसे किसी भी मानवीय निवास का कोई संकेत नहीं था। इस प्रकार कोई व्यक्ति परिप्रेक्ष्य और समय की सभी सांसारिक समझ खो सकता था। चीजों का आकार मिनट से लेकर विशाल तक भिन्न था। दिन कभी खत्म नहीं होते थे क्योंकि गर्मियों में सूरज कभी अस्त नहीं होता था और सर्वव्यापी शांति केवल कभी कभार होने वाले हिमस्खलन या बर्फ की चादरों के टूटने से बाधित होती थी, जो इस स्थान को पवित्र बनाती थी। Question 4. What is the most hotly contested environmental debate of our times? How can the factors destroying the environment be controlled? Discuss. हमारे समय की सर्वाधिक गर्मागर्म विवादास्पद पर्यावरणीय बहस क्या है? जो कारक पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। आंसर: अंटार्कटिका is a crucial element in the debate on climate change because it is the only place in the world that has never sustained a human population and thus remains relatively pristine. Moreover, it holds in its ice caves half a million years old carbon records trapped in its layers of ice. The rapidly increasing depletion of the ozone layer will surely adversely affect the natural system. So, opening our eyes, we should take care of little things to care for the big things automatically and naturally. जलवायु परिवर्तन पर बहस में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कभी भी मानव आबादी नहीं रही है और इस प्रकार यह अपेक्षाकृत प्राचीन बना हुआ है। इसके अलावा इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड दबे हुए हैं। ओजोन परत का तेजी से बढ़ता क्षरण निश्चित रूप से प्राकृतिक प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए अपनी आंखें खोलकर हमें छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बड़ी चीजों का ध्यान अपने आप और स्वाभाविक रूप से रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5. What was the Students on Ice program? What was its aim and why it became
a successful program. Students on Ice कार्यक्रम क्या था, उसका क्या उद्देश्य था और वह एक सफल कार्यक्रम क्यों रहा? Answer. Students on Ice was a research program. The main aim of this program was to make students aware of the danger of global warming. It would help them foster a new understanding and respect of our planet. Based on this understanding, they would frame policies to save. The students in this program visibly saw glaciers retreating and ice shelves falling. Through this program, students got educational opportunities. स्टूडेंट्स ऑन आइस एक शोध कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बारे में जागरूक करना था। इससे उन्हें हमारे ग्रह के प्रति नई समझ और सम्मान विकसित करने में मदद मिलेगी। इस समझ के आधार पर वे इसे बचाने के लिए नीतियां बनाएंगे। इस कार्यक्रम में छात्रों ने ग्लेशियरों को पीछे हटते और बर्फ की अलमारियों को गिरते हुए देखा। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द पैसेंजर्स ट्रेडिंग ऑन अंटार्कटिका। व्हाट लाइफ वाज सर्वाइविंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका। यात्रीगणों के अंटार्कटिका पर कदम रखने की व्याख्या कीजिए। वहां पर कौन कौन सा जीवन जीवित था और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा। आंसर, द जर्नी स्टार्ट्स विथ ए ट्रूप ऑफ 52 पीपल अंडर द गाइडेंस ऑफ experienced Canadian Geoff Green, an educator and adventurer. Academic Sokolovsky, a Russian vessel, was carrying all 52 people to Antarctica, crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. They traveled over 100 hours in a combination of a car, an aeroplane, and a ship, and finally they reached. So we should be careful about the environment. यह यात्रा अनुभवी कनाडाई जियोफ ग्रीन, एक शिक्षक और साहसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में 52 लोगों की टुकड़ी के साथ शुरू होती है। एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकोलस्की सभी 52 लोगों को अंटार्कटिका ले जा रहा था। 9 समय क्षेत्रों, 6 चौकियों, 3 जल निकायों
और कम से कम कई पारिस्थितिक तंत्रों को पार करते हुए उन्होंने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जहाज के संयोजन में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की और आखिरकार वे पहुंच गए। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स on the basis of the lesson journey to the end of the earth। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, अंटार्कटिका इज ए कोल्ड, ड्राई एंड विंडी प्लेस कवर्ड इन थिक आइस। The lesson Journey to the End of the Earth describes it as a huge, white and empty land with no trees, buildings or signs of human life. The continent is peaceful with only sounds like ice cracking or avalanches breaking the silence. In summer, the sun never sets and the light lasts 24 hours a day. Antarctica's simple ecosystem includes small plants like phytoplankton, which are important for the ocean's life. The ice in Antarctica holds information about the Earth's past, helping scientists understand climate change and the environment better. Despite being far from humans, it is deeply connected to the rest of the world. अंटार्कटिका एक ठंडी, शुष्क और हवादार जगह है जो मोटी बर्फ से ढकी हुई है। पाठ पृथ्वी के अंत तक की यात्रा में इसे एक विशाल, सफेद और खाली भूमि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें कोई पेड़, इमारतें या मानव जीवन के संकेत नहीं हैं। महाद्वीप शांतिपूर्ण है। केवल बर्फ के टूटने या हिमस्खलन जैसी आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ती हैं। गर्मियों में सूरज कभी अस्त नहीं होता है और दिन में 24 घंटे रोशनी रहती है। अंटार्कटिका के सरल पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे पौधे शामिल हैं जो महासागर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंटार्कटिका की बर्फ पृथ्वी के अतीत के बारे में जानकारी रखती है, जिससे वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इंसानों से दूर होने के बावजूद यह बाकी दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, assesses the human impact on Antarctica। अंटार्कटिका पर मानव प्रभाव का मूल्यांकन करें। आंसर, humans have not
lived in Antarctica. So the continent remains mostly untouched by direct human activities. However, human impact is still felt due to global issues like climate change. The burning of fuels has increased carbon dioxide levels, causing global warming. This warming threatens to melt the ice in Antarctica, which could raise sea levels around the world. Scientists studying Antarctica have found that even small changes like damage to the ozone layer can affect the region's ecosystem. For example, the tiny plants called phytoplankton, which are important for the ocean's food chain, may suffer from these changes. While humans are not living there, our actions in other parts of the world are having a serious effect on Antarctica's environment. अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं रहते हैं, इसलिए यह महाद्वीप प्रत्यक्ष मानवीय गतिविधियों से ज़्यादातर अछूता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के कारण मानवीय प्रभाव अभी भी महसूस किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस गर्मी से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का खतरा है, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। अंटार्कटिका का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओजोन परत को नुकसान जैसे छोटे बदलाव भी इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फाइटोप्लांक्टन नामक छोटे पौधे जो समुद्र की खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि मनुष्य वहां नहीं रह रहे हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे कार्यों का अंटार्कटिका के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को आने वाली आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं को भी अभिव्यक्त करता हूँ। थैंक यू। हैव ए ब्राइट फ्यूचर। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।